ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں قومی شاہراہوں سمیت موٹر ویز پر دھند کا راج قائم ہے۔ موٹر وے M3 کو فیض پور سے رجانا جبکہ موٹر وے M4 کو پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دیا گیا ہے۔ کمال پور، امین پورہ، ڈپٹی والا اور ساہیہ والا انٹرچینجز پر گاڑیوں کی قطاریں لگ چکی ہیں۔ موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت بھی جاری ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں عثمان حیدر سے۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا موٹر وے سمیت شہر بھر کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، یقینی طور پہ قومی شاہراہوں سمیت موٹر وے پہ دھند کا راج ہے۔ دھند کے بادل چھانے کی وجہ سے مسافروں کو منزل تک پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نہ صرف موٹر وے اور قومی شاہراہوں پہ بلکہ اندرون شہر میں بھی حالات جو ہے وہ مختلف نہیں ہیں۔ 10 میٹر سے کم حد نگاہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو اندرون شہر میں بھی سفر کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت کمال پور انٹرچینج پہ موجود ہیں۔ نہ صرف کمال پور انٹرچینج بلکہ ڈپٹی والا، سائیاں والا اور امی پور انٹرچینج مکمل طور پہ اس وقت ہیوی ٹریفک سمیت لو ٹریفک کے لیے بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ ہیوی ٹریفک کی یہاں پہ گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ البتہ LTV جو گاڑیاں ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اور ان کی جانب جو ہے وہ بعد ازاں قومی شاہراہوں کا رخ کیا جاتا ہے اور موٹر وے کو جو ہے ترک کیا جاتا ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب جو ہے وہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ شہری اندرون شہر میں قومی شاہراہوں پہ یا موٹر وے پہ سفر کرنے کے دوران جو ہے وہ فوگ لائٹ کا استعمال کرے، انڈیکیٹرز اپنے آن رکھے، لین اور لائن کا خاص خیال رکھا جائے اور حد رفتار جو ہے وہ دھیمی رکھی جائے تاکہ جو ہے وہ حادثات سے بچا جا سکے۔ اس حوالے سے موٹر وے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ سفر کرنے کے دوران جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں سفر کریں اور موٹر وے پہ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے موٹر وے پولیس کی متعارف کردہ ہم سفر ایپ سے بھی معلومات لی جا سکتی ہے۔ موٹر وے پہ دوران سفر کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں دھند کے باعث فیصل آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول متاثر۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر حد نگاہ 700 میٹر تک ریکارڈ کیا گیا۔ انٹرنیشنل پروازوں کو فیصل آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت نہ مل سکی۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈیول متاثر۔ فیصل آباد ایئرپورٹ پر حد نگاہ 700 میٹر تک ریکارڈ۔ انٹرنیشنل پروازوں کو فیصل آباد ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ دبئی سے آنے والی پرواز FZ 391 فیصل آباد لاہور لینڈ نہ ہو سکی۔ دبئی سے فیصل آباد آنے والی پرواز FZ 391 واپس دبئی کے لیے روانہ۔ دبئی سے فیصل آباد آنے والی پرواز FZ 371 کو اسلام آباد کی طرف موڑ دیا گیا۔ شارجہ سے فیصل آباد آنے والی پرواز G9 562 کی لینڈنگ کی اجازت نہ ملی۔ شارجہ سے فیصل آباد آنے والی پرواز G9 562 کو لاہور ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا گیا۔ فیصل آباد میں سوئی گیس کا بحران بڑھ گیا۔ سردی کی شدت میں اضافے نے چولہے بھی ٹھنڈے کر دیے۔ ملک پور میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ شدید ہو گئی ہے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ملک پور کے باسیوں کے چولہوں پر قحط بن کر ٹوٹا۔ جما دینے والی سردی میں گیس اڑن چھو ہو گئی۔ علاقہ مکین ہوٹلوں کے غیر معیاری اور مہنگے کھانے کھانے پر مجبور۔ ملک پور کی خواتین محکمہ سوئی گیس کے خلاف سراپا احتجاج بنی رہیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ گیس کا نام و نشان نہیں ہے، باہر سے ناقص کھانے کھا کر بیمار ہو رہے ہیں۔ بیمار خاتون کا کہنا تھا گردوں کے مرض میں مبتلا ہوں، باہر سے کھانا خریدنے کی سخت نہیں۔ چائے کو بھی ترس گئے ہیں، بازار سے لے کے آتے کھانا تو بچے کھا کر کے ٹھنڈی روٹیاں بیمار ہو گئے، ان کے معدے خراب ہو گئے ہیں۔ تو بہت زیادہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے ان کا۔ اگر انہوں نے کرنی بھی گیا، کوئی لوڈ شیڈنگ کرنی بھی ہے تو صحیح طریقے سے کرے، ہمیں بتائیں کہ کتنے گھنٹے آئے گی، کتنے گھنٹے نہیں آئے گی۔ بچے اکثر صبح کو بھوکے ہی چلے جاتے ہیں، جب رات کو واپس آتے پھر بھی وہی پرابلم ہماری، گیس آ نہیں رہی۔ بتا تو 2 گھنٹے کے لیے کہہ رہے کہ آتی ہیں، بچے بھی سین بھوکے چل جاندے ہیں۔ ایک باری بھی نہیں آئی ہے گیس، بالکل سارا دن چ بھی نہیں آتی ہے کتے کہ سارا دن چ ہی آ جائے گیس۔ بزرگ علاقہ مکین نے اعلیٰ حکام سے سوئی گیس کی عدم فراہمی پر نوٹس لینے کی اپیل کی۔ چھوٹے بچے کا کہنا تھا کہ کھانا بنانا تو دور، سالن گرم بھی نہیں کر سکتے۔ روٹی اور چائے تو چھوڑو، اور سالن بھی ایک وقت کا گرم نہیں ہوتا، تو دیکھ لیں بھائی میں باہر سے لا کے کھاتا ہوں۔ گیس کا کوئی شیڈول نہیں ہے، بچے ہیں، سیانے ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی ہیں ترس رہے ہیں گھر میں کھانے کو۔ سوئی گیس کی بے تحاشا لوڈ شیڈنگ نے ملک پور کے باسیوں کا نظام زندگی مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، جس پر علاقہ مکین اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل کرتے نظر آتے ہیں۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد میں سوئی گیس بندش کے ساتھ لکڑیاں اور کوئلہ بھی مہنگا۔ حکومت اپنے وعدے پر پورا نہ اتر سکی، گیس آدھا گھنٹہ بھی بامشکل آتی ہے، شہریوں کا شکوہ ہے۔
फैसलाबाद में शहरी गैस बंदिश की वजह से परेशान दिखाई दे रहे हैं। सर्दी बढ़ने के साथ ही लकड़ी और कोयले की कीमतें भी बढ़ गई हैं। लकड़ी की कीमत 800 से 1200 रुपए फी मन तक जा पहुंची। कोयले की कीमत 80 से 100 रुपए फी किलोग्राम तक हो चुकी है। तो महंगा है, 100 रुपए किलो तक जा रहा है। लकड़ी भी 1200 में है, क्या करे गरीब आदमी किधर चला जाए। लोड शेडिंग है, गैस आ नहीं रहा, मजबूरी है, लेना पड़ रहा है। आगे गई तो बंद तो कोला महंगा, बालन महंगा, की करिए जी, किथों लियाइए जी खाण नूं। ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ, ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। एक और साल गुजरने के करीब, मगर पंजाब गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक मजदूर, मेहनतकश और दिहाड़ीदार तबके की तनख्वाहों में रत्ती भर भी इजाफा न हो सका। मजीद इस रिपोर्ट में। महंगाई बढ़ी, पैदावारी लागत बढ़ी, किराए बढ़े और अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ी। और अगर कोई चीज नहीं बढ़ी तो वो है मजदूर, मेहनतकश की उजरत। मिस्त्री मजदूर, टेक्सटाइल लेबर और दिहाड़ीदार तबका आज भी 15 से 16 हजार रुपए में अपने घर का दाल दलिया चलाने पर मजबूर है। मजदूर यूनियन और लीडरान ने हुकूमत से अपील की है कि नए साल में मजदूर की तनख्वाह बढ़ाई जाए। यहाँ पे किसी ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई, कुछ इदारे ऐसे हैं जिन्होंने बढ़ाई है, बाकी जो है वो ऐसे ही जैसे दाल लगा हुआ है। मजदूर बेचारे मजबूर हैं, वो मजदूरी करने आते हैं घर से, उनको जो भी मिले वो अपनी दिहाड़ी लगा के जाती हैं। मजदूर लीडर फरमान गुजर ने मजीद कहा कि मजदूर बामुश्किल गुजर बसर कर रहा है। मालिकान और हुकूमत इन मेहनत कशों का ख्याल करें जो कारखानों को चलाए हुए हैं। हमारी तो इनसे अपील है कि खुदा अगर आप ऐलान करते हैं तो उसकी पैरवी करें, उस पर अमल दरामद करें। महंगाई के इस दौर में मजदूर की तनख्वाह ना बढ़ने से इसके लिए गुजारा करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। हुकूमत से यूनियन अपील कर रही है कि पंजाब गजट नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। साल 2022 अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। महकमा सेहत के मंसूबे नामुकम्मल है। 3,926 मिलियन के बड़े मंसूबे नामुकम्मल रहे। जनरल हॉस्पिटल समनाबाद 250, जनरल हॉस्पिटल हसीब शहीद कॉलोनी 250 बेड तोसी समेत मुतअद्दिद अस्पतालों में मंसूबे मुकम्मल फाल न हो सके। साल 2022 अपने इख्तिताम की तरफ गामजन, महकमे सेहत के मंसूबे नामुकम्मल। 3,926 मिलियन के बड़े मंसूबे मुकम्मल होना थे। जनरल हस्पताल समनाबाद 250, जनरल हस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी 250 बेड तोसी समेत मुतअद्दिद अस्पतालों में मंसूबे मुकम्मल फाल न हो सके। तहसील हस्पताल समंदरी जुमरा 60 से 120 बेड पर तोसी का मंसूबा शामिल है जो बेतरतीब 2017 और 18 में मुकम्मल होना थे। तहसील हस्पताल तांदियावाला 40 से 100 और खड़ियावाला अस्पताल की 20 से 60 बेड पर तोसी 2018 में मुकम्मल होना थी, मगर तमाम मंसूबे ताहाल मुकम्मल फॉल नहीं हुए। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद कोम्बा का कहना है 95% काम मुकम्मल हो चुका है। थोड़ा बहुत तामीराती काम और मशीनरी की खरीदारी का अमल रह गया जो 2023 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। और यहाँ खबर है जंग से, जहाँ टीबी के मरज की सैंपलिंग का ना होने का इंकशाफ हुआ है। टीबी अस्पताल के पास सैंपलिंग के लिए टीम भी मौजूद नहीं। जंग में टीबी के मर्ज में खतरनाक हद तक इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता माह में 1300 से जायद मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का रुख किया, जबकि दीगर मराकिज़ सेहत पर मरीजों की बड़ी तादाद रिपोर्ट हुई। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक टीबी के मर्ज में इजाफे की बड़ी वजह सैंपलिंग का ना होना है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के पास सैंपलिंग के लिए टीम ही मौजूद नहीं। सैंपलिंग ना होने की वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। TTS गवर्नमेंट ने बाहर पेरीफी सेंटर में दिए हुए RSCs पे हैं, वहाँ पे जो पॉजिटिव केस आता है उसकी बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट सैंपलिंग होती है। गवर्नमेंट ने TTA दिया, वहाँ पे जाकर घरों से कॉन्ट्रैक्ट सैंपलिंग करता है। मेन हब हमारा टीबी हॉस्पिटल है, यहाँ पे TTA नहीं है। अगर यहाँ पॉजिटिव केसेस को बंदा कैरी करे, एड्रेस लेके जाए, उनके घरों पहुँचे तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से टीबी के मर्ज की रोकथाम के लिए इकदाम करने की दरख्वास्त की है। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। और अब आपको बताएं, जंग में आला तालीम के हसूल के लिए तलबा और तालिबात की मुश्किलात कम न हो सकी। 4 कॉलेजेस में शुरू किए गए BS ब्लॉक में सिर्फ 2 ब्लॉक पर ही काम मुकम्मल हो सका है। जंग में आला तालीम के लिए तलबा और तालबात की मुश्किलात कम ना हो सकी। जंग के 4 कॉलेजेस में BS ब्लॉक का काम शुरू किया गया, मगर सिर्फ 2 ब्लॉक पर ही काम मुकम्मल हो सका। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जंग सदर में तलबा की गुंजाइश से ज़ायद तलबा मौजूद हैं, मगर सहूलियात ना होने के बराबर हैं। बच्चे जमीन पर बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं।
हमारे पास 4 मुख्तलिफ कॉलेजेस में BS ब्लॉक स्टार्ट हुए थे, जिनके अंदर से 2 जो हैं वो कंप्लीट होकर हमें हैंड ओवर हो चुके हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन भी सहूलियात की फराहमी के लिए कोई वाज़ा इकदाम ना कर सका। 5% स्कूलों में ताहाल 4 दीवारी मुयसर नहीं, जबकि 22% स्कूलों में हिफ्ज़ान सेहत की सहूलियात नहीं है, तो 16% स्कूलों में फर्नीचर की कमी के बाइस तलबा को मुश्किलात का सामना है। CEO एजुकेशन मलिक मोहम्मद नवाज ने स्कूलों के लिए NSB फंड्स को कम करार दे दिया। इन 2 तहसीलों में बच्चों की तादाद दूसरी तहसीलों से शोरकोट और झंग से कम है, इसलिए उनको फंड कम मिल रहा है और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फंड मिले। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग को बने भी 4 साल से जायद का अरसा गुजर गया, मगर ताहाल PC1 मंजूर ना हो सका। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ वसीम अजीज, CT41 जंग। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद का इलाका उस्मान टाउन मसाइल की आमाज का बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम दरहम बरहम, जदीद दौर में भी इलाके की कच्ची गलियां पक्की ना की जा सकी। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल कम ना हुए, उस्मान टाउन की कच्ची गलियां इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की नाहली का मुंह बोलता सबूत पेश कर रही हैं। सोलंग का नामो निशान नहीं, सीवरेज का निजाम भी खत्म हो चुका है। इलाका मकीन कहते हैं 15 साल से उस्मान टाउन में रह रहे हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हुए। ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਤਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਵਾਸਾ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ना साड़ी को हुकूमत सुनवाई सुन रही। इलाका मकीनों का कहना था सीवरेज के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं, एक गली का मसला हल होता है तो दूसरा सर उठाना शुरू कर देता है। अवामी नुमाइंदे सिर्फ वोट के हसूल के लिए आते हैं, मसाइल हल करने नहीं। ये 15 साल हो गए हम इधर आबाद हैं, 15-20 साल। जो भी हुक्मरान आता है अपने पेट पे हाथ फेर के चला जाता है। अगर कोई काम करने वाला आता है उसको काम नहीं करने देते। हमारे घरों में पानी बढ़ चुका है, हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। एक तरफ कच्ची गलियां, दूसरी तरफ नाकिस सीवरेज का निजाम। उस्मान टाउन के इलाका मकीन पसमानदगी का शिकार है। मौजाबाग में नालियों की सफाई सुथराई का कोई निजाम ही मौजूद नहीं। जगह जगह कचरा, नालियों से स्लट और कचरा निकालने के लिए स्टाफ भी मौजूद। ये गलियां और बाजार हैं मौजाबाग के, जहां सफाई सुथराई का कोई निजाम नहीं। इलाके में जगह जगह कचरा मौजूद है, जबकि नालियों की सफाई के लिए स्टाफ ही मुयस्सर नहीं। यहाँ से सफाई से इतना नाकस निजाम है कि अगर बारिश हो जाए ना तो 8-8 दिन पानी गली में रहता है, जिस वजह से हमारे इस इलाके में टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैल चुका है। हमारा बहुत बड़ा मसला है ये सफाई का। तो हुकूमत से हमारी अपील है कि काइंडली ये हमारा मसला हल किया जाए। यहाँ पे कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है, सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए। हमसे जो वोट लेते हैं उनको हमारे बारे में सोचना चाहिए। इलाके में कचरे के ढेर लगे हुए हैं और नालियों से निकाली गई गंदगी को ठिकाने लगाने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। इलाके में गंदगी ही गंदगी है, इलाका मकीन मुश्किल से दो चार हैं। एक साल तो बाद साढ़े को सफाई करने वास्ते आंदे, अदरवाइज कोई भी सफाई का इंतजाम कोई नहीं साढ़े कोल। ते साडी अपील है गवर्नमेंट तो कि वो मतलब बाकायदगी नाल सफाई करावन साडे, ताकि लोग बीमारियों तो महफूज रह सकें। वकीलों ने बताया कि सफाई सिर्फ त्यौहार के मौका पर ही होती है, जबकि नालियां भी खुद ही साफ करना पड़ती हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, CT41 झंग। समंदरी और कोसरा में सड़कों चौराहों की बहाली का फैसला ना हो सका। उधर जंग में सरकारी मुलाजमीन की रहायशी कॉलोनी लालाजार की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मंसूबा। समुद्री और गोजरा के मकीनों के लिए अच्छी खबर, सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम होगा। समुद्री और गोजरा में सड़कों चौकों की बहाली का फैसला। समुद्री और गोजरा में सड़कों चौकों की बहाली के लिए 13 करोड़ 23 लाख मंजूर। गोजरा में सफाई के मंसूबों के लिए आलात और मशीनरी की फराहमी के लिए 19 करोड़ 93 लाख मंजूर। कमिश्नर फैसलाबाद ने फंड की मंजूरी दे दी। उधर जंग में सरकारी मुलाजमीन की रहायशी कॉलोनी लालाजार की सिक्योरिटी बेहतर बनाने का मंसूबा। फंड फराहम कर दिए गए। 20 लाख रुपए से सिक्योरिटी रूम तामीर किया जाएगा। पंजाब हाउसिंग सोसाइटी के मुताबिक सिक्योरिटी रूम की तामीर का काम जून 2023 से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताहम लालाजार कॉलोनी की सिक्योरिटी के अलावा दीगर तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स के इजरा के वादे वफा न हो सके। लालाजार कॉलोनी में सड़कों और सेवरेज के लिए एक पाई भी फराहम नहीं की गई। तरक्याती काम न होने के बाद रिहायशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि फैसलाबाद के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स की तामीर नौ का फैसला भी कर लिया गया। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग ने नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर की तामीर नौ के लिए तखमीना लागत मांग लिया। आइंदा साल के आगाज में डिस्ट्रिक्ट बार में नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर की तामीर होगी। बिल्डिंग हुकाम को जल्द से जल्द तखमीना लागत इरसाल करने के अहकाम जारी। FWMC को फंड्स की कमी का मसला दरपेश है।
FMWMC को फंड्स की कमी का मसला दरपेश, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को 24 करोड़ की तजवीज़ भिजवा दी गई। फंड्स मिलने पर नई मशीनरी खरीदी जाएगी। फैसलाबाद में इस वक्त 81% शहर की सफाई की जा रही है, बाकी 19% इलाका सफाई से महरूम रह जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर FWMC बिलाल फिरोज का कहना है कि अगर हुकूमत मजीद फंड जारी करती है तो इससे 100% सफाई को मुमकिन बनाया जा सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक मशीनरी की खरीदारी के लिए 24 करोड़ के फंड सरकार है। अगर फंड्स मिल जाएं तो बेहतरी आ सकती है। सीवरेज ज़्यादा जंग के साथ तरक्याती मंसूबों में हेर फेर, 55 करोड़ रुपए लागत के भक्कर रोड के तामीर के दौरान बरसाती नाले की तामीर नजरअंदाज, नाले के लिए खुदाई करके तामीर रोक दी गई। बरसाती नाले की तामीर का काम फेस्को के खंभों को जवाज बनाकर रोका गया। बरसाती नाले की अदम तामीर से बरसाती पानी की निकासी के मसाइल पैदा होंगे। भक्कर रोड के ताजरों ने दुहाई देते हुए कहा कि बरसाती नाले ना बनाया गया तो पानी की निकासी नहीं हो सकेगी, जिससे सीवरेज मसाइल पैदा होंगे। जंग में मवेशी मंडी का मंसूबा भी जगह की अदम फराहमी के बायस रोक दिया गया। इंतजामिया ने मंसूबे को नाकाबिले अमल करार दे दिया। मंसूबे के लिए फराहम करदा 30 लाख रुपए के फंड्स भी वापस हो गए। मवेशी मंडी में जानवरों के हौज समेत दीगर बुनियादी सहूलियात मुहैया की जाना थी। मंसूबे के लिए फंड्स पंजाब कैटल मार्केट डेवलपमेंट ने जारी किए थे।